हेलो एंड वेलकम टू रिलेशनशिप लैब। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है ओल्ड एज में नार्सिसिज्म किस तरह से सामने आता है और ओल्ड पेरेंट्स जो कि नार्सिसिस्ट हों उनसे किस तरह डील किया जा सकता है। ये एक सवाल था जो कि एक खातून ने जुनैद अकरम के चैनल पे भेजा था इन आस्क गंजी स्वैग। सो हम पहले उस सवाल को देखेंगे, उनकी सिचुएशन को ऑब्ज़र्व करेंगे और फिर उसका जवाब ढूँढेंगे इन द light of narcissism and how it manifests in older people. Older parents having a hard time dealing with them. Dear sir, I want to share with you an issue I'm facing. I'm a female living outside Pakistan, married to a fine gentleman for the past 4 years and enjoying life. Basically, everything is in general fairly good. My parents live in Pakistan and I go to visit them often. I'm one of 4 siblings, 3 brothers and I'm the only sister. Recently, one of my parents was ill and I had to go back to take care of them. I was the only one who could go as other siblings have legal immigration issues and were unable to go. I do not have a sibling living in Pakistan. My parents are in their 60s and 70s, father being in the 70s. In the past, my parents have faced tremendous financial issues. There was only a period of maybe 5 to 6 years where my father made enough money to send his kids abroad for their education. I, being the youngest, fell in the latest time period of this. Towards the end of my education, my father had stopped making money and basically fell into the category of semi-retired to retired, not because he wanted to, but because he refused to do a job wherein he would be answerable to others. Basically, this was an issue in his working life throughout. My dada was a wealthy man who left a lot of money, which the siblings later fought over, and my dad got the short end of the stick. However, it was big enough to help him sustain his life for the most part. The problem that I have in the current scenario is that he has little money, but he has decided to retire and spends his time doing frivolous things like sending jokes on WhatsApp, making nonsensical conversations, living in the past. He was once a decent guy, but he has really fallen from graces in the recent past. It's the classic, an idle mind is the devil's workshop. I have tried to help him develop hobbies, watch interesting things, watch things that make your mind work rather than aid in its deterioration. With these things that he has been doing recently, his Bavakar status in our lives is reducing. He sends frivolous messages, stupid jokes, misogynist jokes, random religious videos, images, basically all the things that kids don't like to receive from their parents. It's like a typical WhatsApp uncle ban gaya aapke wo. I really remember having a single fruitful conversation with him in which he has given me a solution for my problems. Anything that requires him to use his brain, he refuses to do. He's becoming a caricature Desi uncle, something he was not. He resorts to abusing people without reason, like फलाना बड़ा बेवकूफ़ आदमी है और ये सारे कुत्ते हैं, as if he's the only sane person on the planet. Me sitting so far away cannot do much for him except help him with my words. But what am I to do if I can't even have a conversation with him? This has manifested in his relationship with my mother as well. I don't remember them ever being happy and financially stable. He always discouraged her from working, and now in their old age, when she is financially dependent on him, he resents this. I hate watching my mother ask him for money for anything. He held the financial reins in his hands so tightly that she now has nowhere to go, and it pains me to have to literally beg him for money. Like they hide the money they have saved from each other. यार इतनी क्यों insecurity है? I tried to help set up something for her where all of us siblings would send her money every month, but she is unwilling to accept it as she views it as charity, which we have all been clear it is not. They are constantly fighting and making disparaging remarks at each other. They refuse to go to therapy. Dude, 70 साल वाले therapy पे कभी भी ना जाए. And she refuses to divorce him. They fight every single day, and honestly, it's just mentally taxing to see this. While visiting, I had a nervous breakdown because of the constant tension in the house, and honestly couldn't wait to leave and be with my husband where I would be cared for and not be resorted to constant mental tension. The truth is that there is so much going on in my life, personal career issues, mental and physical health challenges, that I find hard to deal with their issues on a regular basis. How do I deal with this situation? P.S.
My brothers deal with it completely ignoring the situation and getting on with their lives. I wish I could do that, but the caretaker in me cannot deal with it. How do I fix this situation or should I emotionally disconnect from it? Thank you for your help. जी, तो ये ख़ातून हैं जो कि अब्रॉड रहती हैं और इनको अपने पेरेंट्स से काफ़ी लगाव है, लेकिन अब चूँकि ये मैरिड हैं और अपने घर में रहती हैं अपने हस्बैंड के साथ, उनकी रिलेशनशिप अपने हस्बैंड के साथ बहुत अच्छी है, अपने घर में बहुत सुकून में है वो। लेकिन जब वो वापस जाती हैं और अपने पेरेंट्स की सिचुएशन को देखती हैं, तो उनको नज़र आता है कि उनकी मैरिज जो है वो बिल्कुल डिटीरियरेट हो चुकी है, बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है। वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और एक दूसरे को वो बहुत टेंशन क्रिएट करके रखते हैं अपने घर में। और जब ये लास्ट टाइम वहाँ पे गई तो इनका बिल्कुल नर्वस ब्रेकडाउन होने लगा और इनका दम घुट गया वहाँ पे। ये चाहती हैं कि अपनी मदर की थोड़ी बहुत हेल्प करें, अपने बहन भाइयों से मिल के इनकी हेल्प करें, लेकिन उनकी मदर जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर सकती। इनके फादर जो हैं वो वक्त के साथ साथ एक व्हाट्सएप अंकल बन चुके हैं, जैसे कि जुनैद अकरम ने कहा। लेकिन व्हाट आई थिंक इज़, एज़ फार एज़ आई नो, नार्सिसिस्ट ये अंकल जो थे ये हमेशा से इनकी पर्सनालिटी ऐसी ही थी। सो अगर ये सोच रही हैं कि आज या पिछले फ्यू डेज़ में या रिटायरमेंट के बाद उनकी पर्सनालिटी इस तरह ट्रिगर हो गई, तो यकीनन शायद इन्होंने कभी गौर नहीं किया होगा, लेकिन उनकी पर्सनालिटी हमेशा से ऐसी ही थी। चूँकि अब इन्होंने उनको ज़रा डिटेल में ऑब्ज़र्व किया है, अब उनको ये मसाइल नज़र आने शुरू हुए हैं। सो एक चीज़ जो उन्होंने एक्सप्लेन की अपनी वीडियो में और अपने लेटर में, जो कि हर नार्सिसिस्ट के साथ आपको देखने को मिलेगी। नंबर वन थिंग कि इनके फादर जो थे वो बाप दादा की जो भी छोड़ी हुई जायदाद थी, या जो उन्होंने लिखा है कि उनके ग्रैंडफादर जो थे वो काफ़ी वेल टू डू थे। तो उन्होंने जो भी जायदाद उनको अपने बेटे के लिए छोड़ी, वो उन्होंने यकीनन, चूँकि ये छोटी बच्ची थी इसलिए उनको शायद पता ना चला हो, लेकिन यकीनन इसी तरह होता है कि नार्सिसिस्ट जो है वो अगर इनहेरिट करें बहुत सारा पैसा, तो वो बहुत सेल्फिश किस्म के कामों में उड़ा देते हैं। वो उनकी इतनी फोरसाइट नहीं होती कि वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकें या लॉन्ग टर्म में अपने पैसों को इस तरह से इस्तेमाल करें कि उनकी जनरेशन आगे उसे इस्तेमाल कर सकें या उससे फ़ायदा उठा सकें। सो ये चीज़ इन्होंने शायद ऑब्ज़र्व नहीं की, लेकिन ये यकीनन इसी तरह ही होगी। सेकंड थिंग ये कि ये लिखती हैं कि इनकी फ़ादर की और मदर की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती और वो एक दूसरे के साथ बहुत बुरा सलूक करते हैं। ये भी एक ऐसी चीज़ है जो कि शायद इन्होंने एज़ अ चाइल्ड बचपन में बिल्कुल ऑब्ज़र्व नहीं की, चाहे शायद इनका ध्यान उस तरफ नहीं गया या इन्होंने नहीं देखा। लेकिन ये भी चीज़ एक ऐसी नहीं है जो ख़राब हो जाए वक्त के साथ। अगर आपकी रिलेशनशिप शुरू से ही ख़राब है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि आप एक दूसरे की बर्दाश्त करते रहते हैं, लेकिन वक्त के साथ साथ चीज़ें बिगड़ती चली जाती हैं। आप ये नहीं कह सकते कि एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल की उम्र में जाके उनकी शादी ख़राब हो गई। इस तरह से नहीं, उनकी शादी हमेशा से ही ख़राब थी। वो सिर्फ़ एक दूसरे के साथ कोडिपेंडेंसी में रह रहे थे। कोडिपेंडेंसी का मतलब ये होता है कि पार्टनर के पास फुल पावर होती है, उसके पास पैसा होता है। जैसा कि इन्होंने अपनी ईमेल में लिखा कि इनके फादर के पास 100% कंट्रोल था पैसे का। जब भी उनके पास पैसा आया, अव्वल तो उन्होंने काम नहीं किया, उन्होंने बहुत छोटे अरसे के लिए काम किया, और जैसे ही उनके पास पैसा आया उन्होंने बिल्कुल अपने हाथ में रखा और अपनी बीवी को बिल्कुल भी उसकी हवा नहीं लगने दी और उनको कभी फाइनेंशियल ऑटोनॉमी नहीं दी। इसका मतलब ये है कि उन्होंने कभी उनको खर्चने के लिए पैसे नहीं दिए, हमेशा अपनी बीवी को दबा के रखने की कोशिश की। ये एक बड़ी कॉमन नार्सिसिस्टिक ट्रेट होती है। नार्सिसिस्ट जो होते हैं वो किसी भी तरीके से अपने पार्टनर के ऊपर कंट्रोल रखना चाहते हैं, और पैसा जो है वो एक बहाना हो जाता है। फाइनेंशियल अब्यूज़ एक बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत कॉमन पैटर्न है नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में, जो इनकी मदर ने फेस किया।
अगर आप अपनी मदर के साथ बैठ के और उनसे डिटेल में बात करें तो आपको शायद ये चीज़ ऑब्ज़र्व करने को मिलेगी कि वो हमेशा से ही ऐसे था। वो रिटायरमेंट के बाद या जैसे ही उनके पास पैसे ख़त्म होने शुरू, उस वक़्त से वो बिहेवियर शुरू नहीं हुआ, वो बिहेवियर हमेशा से था। और शायद आपकी मदर ने, उनकी फ़ोरसाइट हो या वो चाहती हों कि आपको पता ना चले, शायद उन्होंने अपने बच्चों से ये बात छुपा के रखी। लेकिन अब चूँकि बच्चे बड़े हो गए हैं तो ये बात खुल के बिल्कुल सामने आ गई है। लेकिन ये चीज़ हमेशा से ऐसी ही थी और ये एक नार्सिसिस्टिक ट्रेट है जो कि आप बहुत कॉमनली नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ में ऑब्ज़र्व करेंगे। फिर ये लिखती हैं कि जी मेरे भाई जो हैं वो बिल्कुल अपने काम से काम रखते हैं और ये चूँकि अपनी मदर से काफ़ी करीब हैं, ये चाहती हैं, इनका दिल दुखता है, ये चाहती हैं कि अपनी मदर की हेल्प करें। लेकिन एक चीज़ जो ये रियलाइज़ नहीं कर रही वो ये है कि एक नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप के अंदर जो दो बंदे फंसे होते हैं, एक अग्रेसर जो कि नार्सिसिस्ट होता है और दूसरा जो कि कोड नार्सिसिस्ट भी हो सकता है या कोडिपेंडेंट भी हो सकता है, उनको आपस में सेपरेट करना किसी थर्ड पर्सन के लिए पॉसिबल नहीं होता। और एज अ चाइल्ड आप अपनी मदर के लिए कुछ भी नहीं कर सकती। आप चाहती हैं कि उनको आप एक अलग से बैंक अकाउंट इस्टेब्लिश करके दें जिसमें आप अपने बहन भाई पैसे भेज सकें और उनके पास थोड़ा सा कुछ आराम और बंदोबस्त हो जाए। आप ये ऐसा कर सकती हैं, आप ज़रूर करें अगर आप करना चाहती हैं। लेकिन अगर आप ये समझ रही हैं कि वो पैसे आपकी मदर ख़ुद के लिए यूज़ कर सकेंगी या उन पैसों को वो एंजॉय कर सकेंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वो भी तो पिछले 40 ईयर्स से या 45 ईयर्स से वो उन्हीं पैटर्न्स के अंदर रह रह के शी इज़ यूज्ड टू देम। उनके वो बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं वो डेवलप हो चुके हैं और वो कभी ठीक नहीं होंगे। अगर वो नार्सिसिस्ट अब्यूज़ ले के और कंडीशन हो चुकी हैं तो वो उसको कभी चेंज नहीं कर सकती। दूसरा ये कि आप उनकी मैरिज को चेंज नहीं कर सकती। अपने पेरेंट्स की मैरिज को बना के रखना या अपने पेरेंट्स की मैरिज को बेहतर करना या अपनी पेरेंट्स की मैरिज को ठीक करना, ये एज अ चाइल्ड, एज अ डॉटर आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। मैरिज जो है वो दो पार्टनर्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट है, डिवाइन फोर्स की तरफ से दी गई ब्लेसिंग है जो कि दोनों पार्टीज़ ने अपहोल्ड करनी होती है। दोनों पार्टीज़ ने उसमें इन्वेस्टमेंट टाइम की करनी होती है, इमोशंस की करनी होती है, अपनी लाइफ की करनी होती है। उसमें एक थर्ड पर्सन आके हेल्प नहीं कर सकता। और अगर आप चाहती हैं कि अपने पेरेंट्स को आप काउंसल करें, आप उनको थेरेपी पे लेके जाएं, ये पॉसिबल नहीं है। ये चीज़ आप शायद समझ नहीं पा रही हैं और somebody has to tell you this। लेकिन अगर आप किसी को बचाना चाहें, लेकिन अगर वो ख़ुद अपने आप को बचाना ना चाहे या ख़ुद अपनी ज़िंदगी को चेंज करना ना चाहे, तो उसके लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते। एट दिस पॉइंट इन टाइम आप बहुत मेंटली अपसेट हैं, आप बहुत दुखी हैं क्योंकि आप देख रही हैं क्या उनकी मैरिज जो है वो डिटीरियरेट हो गई है। एंड आई कैन टोटली अंडरस्टैंड दैट। लेकिन रियलिटी ये है कि द ओनली थिंग यू कैन फोकस ऑन इज़ योर ओन लाइफ एंड योर ओन मैरिज। ये चीज़ें जो हैं वो आप बदल नहीं सकती, इन चीज़ों को आप बेहतर नहीं कर सकती। मैरिज जो है वो दो लोगों के दरमियान है और आपकी ज़िम्मेदारी अपनी मैरिज को ठीक रखना है। आप अपने पेरेंट्स का ड्रामा अपनी ज़िंदगी में स्पिल ओवर ना होने दें। जो आपके भाई कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वो जानते हैं, वो देख चुके हैं, वो अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या था। ये फाइनेंशियल अब्यूज़ थी, इमोशनल अब्यूज़ थी और एक कोडिपेंडेंसी की रिलेशनशिप आपके पेरेंट्स की आपस में बन चुकी है जो कि बहुत डेकेड से इस्टेब्लिश्ड है। वो उसे चेंज नहीं कर सकते और ये वो चीज़ जानते हैं। वो जानते हैं कि चाहे वो जो मर्ज़ी कर लें, अपने आप को उल्टा लटका लें, लेकिन वो उनकी ना मैरिज चेंज कर सकते हैं, ना उनकी लिविंग कंडीशंस चेंज कर सकते हैं। चाहे वो उनको जितना मर्ज़ी पैसा दे दें, वो पैसा वो कभी नहीं देखेंगे, ना ही वो कभी पैसा इस्तेमाल होगा। वो पैसा उल्टी सीधी चीज़ों में चला जाएगा। एज़ फार एज़ आपके फादर की पर्सनालिटी और उनकी हॉबीज़ को डेवलप करने की आपने बात की, उनकी हॉबीज़ को डेवलप करना आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। वो एक ग्रोन अप इंसान है जिन्होंने इस दुनिया में 70 ईयर्स गुजारे हैं।
उनको पता है कि ज़िंदगी कैसे जी जाती है। वो जैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं वो जानते हैं दिस इज़ द लाइफ दैट ही हैज़ मेड फॉर हिमसेल्फ। अगर उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक करियर इस्टेब्लिश करना होता, अगर हार्ड वर्क से अपनी मेहनत से एक बिज़नेस इस्टेब्लिश करना होता, अगर एक जॉब करनी होती और उस एनवायरनमेंट के अंदर अपने आप को आगे लेके जाना होता, ये सब टेंजिबल गोल्स हैं। ये सब गोल्स कोई भी इंसान अपने लिए क्रिएट कर सकता है और अपने लिए अचीव कर सकता है, लेकिन आपके फादर ने नहीं किया। ये उनकी चॉइस थी। ये चॉइस आप उनके लिए चेंज नहीं कर सकती। उनकी चॉइस ये नहीं थी कि वो अपने ब्रेन को डेवलप करें, कुछ सीखें, कोई नई चीज़, अपने आप को स्पिरिचुअली एनहांस करें या अपने आप को किसी नई चीज़ में इन्वेस्ट करें, कोई नई चीज़ सीखें, अपने आप को लर्निंग में अप्लाई करें, अपने दिमाग को एक्सपैंड करें, अपने आइडियाज़ को एक्सपैंड करें, लोगों से कन्वर्सेशन करें, नई चीज़ें सीखें, किताबें पढ़ें। इट इज़ हिज चॉइस कि वो व्हाट्सएप पे मिसोजिनिस्टिक जोक्स फॉरवर्ड करें, बिकॉज दैट इज़ हु ही इज़, दैट इज़ द कॉन्शियस चॉइस दैट ही हैज़ मेड फॉर हिमसेल्फ इन हिज लाइफ। ये चीज़ आप अंडू नहीं कर सकती, ये चीज़ आप चेंज भी नहीं कर सकती, ये चीज़ आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी एंड समबडी हैज़ टू हेल्प यू अंडरस्टैंड दैट। सो अगर आप अमेरिका में हैं तो आप थेरेपी हॉटलाइन पे फ़ोन करें, किसी थेरेपिस्ट से बात करें, अपने आप को थेरेपी दें और इस चीज़ से निकलने की कोशिश करें, क्योंकि ये चीज़ ज़िंदगी का एक ऐसा ट्रूथ है जो कि आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये चीज़ आप बदल नहीं सकती, सिवाय इसके कि ये हार्ट एक सारी उम्र आपके साथ चलती रहे, आपकी अपनी पर्सनल रिलेशनशिप्स के अंदर आती रहे, आपकी पर्सनल परफॉर्मेंस एज अ वाइफ, एज अ मदर उसको इम्पैक्ट करती रहे। इसके अलावा इस चीज़ का कोई हल नहीं है। आप अगर अपनी मदर के लिए थोड़े से पैसे वगैरह अरेंज करना चाहती हैं तो आप उसे चैरिटी ही समझ के दें, बिकॉज़ आपको उसका कोई रिज़ल्ट नज़र नहीं आएगा। ये यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, बिकॉज़ यू कैन नॉट चेंज हू दे आर, द वे दे लिव। उनकी ये कॉन्शियस चॉइसेस हैं, वो इसी तरह ही रहना चाहते हैं। और इस होल सिचुएशन से आपके लिए एक वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट यू कैन गेट आउट ऑफ दिस इज़ कि आप अपनी ज़िंदगी डिफरेंट करें। आप अपनी ज़िंदगी इनको ऑब्ज़र्व करें, देखें कि ये किस तरह से ज़िंदगी जी रहे हैं और आप अपने लिए ये डिसाइड करें कि मैं इस तरह की ज़िंदगी नहीं गुजारूँगी, मैं इस तरह का ओल्ड एज नहीं चाहती। मैं अपने पेरेंट्स के साथ जो भी करूँगी अच्छा करूँगी, लेकिन अपने लिए मैं सबसे पहले वो टाइम की, वो एनर्जी की और वो मेंटल कैपेसिटी की इन्वेस्टमेंट करूँगी जो कि एक अच्छी ओल्ड एज के लिए चाहिए होती है। बहुत सारे ऐसे ओल्ड लोग होते हैं जो कि अपनी ज़िंदगियाँ बहुत अच्छे तरीके से गुजारते हैं। मिसाल के तौर पर देयर इज़ अ लॉट ऑफ पीपल जो कि चैरिटी वर्क करते हैं, जो रिटायरमेंट के बाद अपने आप को डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ असाइन करते हैं, नई चीज़ें सीखते हैं और लोगों की खिदमत करते हैं। अपने आप को एक रीज़न देते हैं कि वो सुबह उठें और उनका दिन अच्छा गुजरे। दे वेक अप एंड दे डिसाइड टू हैव अ पॉजिटिव डे। आप अपने लिए एक पॉजिटिव ज़िंदगी कल्टिवेट करें, अपने आप को एजुकेट करें। अगर आप बाहर रहती हैं और पाकिस्तान में नहीं रहती हैं तो यू हैव एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ फॉर व्हाट यू कैन डू इन लाइफ। आप अपने लिए एक बिज़नेस शुरू करें, आप लोगों को फ्री एजुकेशन दें, आप अपनी कम्युनिटी में वॉलंटियर करना शुरू करें। जो गलतियाँ आपके पेरेंट्स ने की वो गलतियाँ आप अपनी मैरिज में मत करें। आपने देखा कि वो किस तरह से एक दूसरे के साथ फाइनेंशियली बहुत स्टिंजी रहते थे, कंजूस रहते थे, हाथ खींच के रहना, पैसे छुपाना एक दूसरे के साथ। ये चीज़ें पर्सनल रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं होती। ये चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में बिल्कुल मत आने दें। आप देखें, आप ऑब्ज़र्व करें, आपके सामने एक ज़िंदगी की लाइफ बुक मौजूद है और आप वो सारी गलतियाँ देख सकती हैं कि जो उन्होंने की थी। वो गलतियाँ अपनी ज़िंदगी से एलिमिनेट करें। दैट इज़ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ एंड योर पेरेंट्स। अगर आप एक पॉजिटिव ज़िंदगी गुजारती हैं
और एक पॉजिटिव ओल्ड एज गुजारती हैं, ये एक ग्रैटिट्यूड है जो कि आपने डिवाइन फोर्स को दिया। आप दिस इज़ योर ग्रेटफुलनेस टू लाइफ। जो ज़िंदगी हमें दी गई है वो एक अपॉर्चुनिटी है, उसको हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं, किस तरह उसको बेहतर बनाते हैं, किस तरह उसको संवारते हैं और अच्छे आइडियाज़ के साथ उसको क्यूरेट करते हैं, अच्छी रिलेशनशिप्स के साथ हम जो भी बोलें अच्छा बोलें, इस तरह से लोगों के साथ इंटरेक्ट करें कि वो अपलिफ्ट हों, वो पॉजिटिव फील करें। ये चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, ये चीज़ें ऑटोमेटिकली नहीं आती, ये चीज़ें अपने आप को आपको ट्रेन करना पड़ता है और ये चीज़ें आप कर सकती हैं। लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ ग्रीफ इन द पाथ दैट यू हैव टू टेक। आप अपने पेरेंट्स के साथ बहुत इन्वॉल्व्ड हैं, लेकिन ये चीज़ें आपको वक्त के साथ साथ सीखनी पड़ेंगी। ये चीज़ें आप अपने आप को इमोशनली उनके साथ डिटैच करना पड़ेगा। आपको ये रियलाइज़ करना पड़ेगा कि आपका उनकी ज़िंदगी के ऊपर कोई कंट्रोल और इन्फ्लुएंस नहीं है। दिस इज़ द लाइफ दैट दे हैव चोज़न फॉर देमसेल्व्स। लेकिन एज अ रिएक्शन वो पेन, वो ग्रीफ जो आप फील करेंगी उसको चैनल करें अपनी ज़िंदगी और उन लोगों की ज़िंदगी बेहतर बनाने में जो आपके इर्द गिर्द मौजूद हैं। सो टेक दिस पेन, मेक इट इनटू समथिंग ब्यूटीफुल। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाएं, अपने आप को पॉजिटिवली ट्रेन करें, अपने आप को सेल्फ इम्प्रूवमेंट के रास्ते पे डालें और अपनी ज़िंदगी ग्रैटिट्यूड में गुजारें। शुक्र अदा करें कि आपके पास कितनी खूबसूरत ज़िंदगी है और आपको ये अपॉर्चुनिटी मिली कि आप उसे पॉजिटिव बना सकती हैं। That is the biggest takeaway from all of this. I wish you all the best. If you have any questions, if you learned anything from this video, please hit like and subscribe. If you have any questions, अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं या आप अपनी कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं, मेरा ईमेल एड्रेस स्क्रीन पे आ रहा है और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मौजूद है। आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। आपकी किसी भी प्रॉब्लम का जवाब जो है वो अनोनिमसली दिया जाएगा। सो आपका नाम, आपका ईमेल एड्रेस रिवील नहीं किया जाएगा। आप फुल कॉन्फिडेंस में अपनी प्रॉब्लम मुझे लिखें। इफ़ आई कैन हेल्प यू, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू so much for watching and I will see you in the next one.